افرایم سے خدا کے گلے. کیا کلام کا ٹاپک ہے جی؟ افرایم سے خدا کے گلے. خدا افرایم سے کیا گلے کرتا ہے، اس پر غور کریں گے. میرے ساتھ مل کر نکالے ہوشیہ کی کتاب اور اس کا 7 باب اور اس کی 8ویں آیت سے لے کر 11ویں آیت تک غور کریں گے. میرے پیچھے بولیں، افرایم سے خدا کے گلے. کیا کہیں آپ سے بھی تو خدا کو گلے نہیں ہیں؟ خدا کو شکوے تو نہیں ہے آپ سے؟ اگر کسی کو کسی سے گلہ ہو تو انسانوں کے گلے تو کوئی بات نہیں، اگر آپ اس سے بے خبر ہیں، وہ انسان کے گلے ہیں. اگر گلے خدا کے ہو تو پھر معلوم ضرور ہونے چاہیے. اگر انسانوں کو آپ سے گلے ہیں، شکایات ہیں، شکوے ہیں، تو پھر کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. رہنے دیں انسانوں کو گلے. اگر وہ کلیئر کرنے والے ہیں تو کریں، اگر آپ کو پتا ہے. اگر ان کے گلے کچھ ایسے ہیں جن کی بنیاد حقیقتوں پر نہیں، تو پھر ان گلوں کو آپ کلیئر کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ ان کے گلوں کی بنیاد ہی جھوٹی ہے. ان کے گلے جھوٹے ہیں، ان کے گلوں میں کوئی طاقت نہیں ہے، کیونکہ وہ سچائی سے میل نہیں کھاتے. ان کے گلے شکوے، وہ آپ کا پڑوسی ہو سکتا ہے جو آپ سے گلے کرنے کے لیے ہر وقت تیار بیٹھا رہتا ہے. آپ کا کوئی رشتہ ہو سکتا ہے، آپ کی برادری میں کوئی ہو سکتا ہے، آپ کی جاب میں کوئی ہو سکتا ہے. اگر اس کا گلہ حقیقت پر مبنی ہے تو وہ بھی کلیئر کرنے چاہیے، وہ بھی کلیئر کرنے چاہیے. مگر فرسٹ آف آل آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کیا خدا کو بھی آپ سے کوئی گلہ شکوہ ہے؟ اور اگر گلہ شکوہ ہے تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے؟ دور کرنا چاہیے، کلیئر کرنا چاہیے. اور میں آج افرایم کے گلوں پر بولوں گا جو خدا کو گلے تھے افرایم سے، اور افرایم ان گلوں سے ایک بھی ماننے کے لیے تیار بھی نہیں تھا، اور لگتا ہے وہ ان سب گلوں سے بے خبر بھی تھا. جی ذرا پڑھ دیجئے ذرا. ہوشیہ کی کتاب 7 باب 8 آیت میں یوں رقم ہے. جی، افرایم دوسرے لوگوں سے مل جل گیا. افرایم دوسرے لوگوں سے مل جل گیا. سب سے پہلے تو یہ پتا ہونا چاہیے کہ افرایم ہے کون. کیوں جی علما آپ کو بتائیے افرایم کون تھا؟ ہاں جی، کلیسیا میں افرایم کون تھا؟ جی بیٹے آپ کو پتا ہے؟ جی شوبل آپ کیا کہتی ہیں؟ افرایم کا نہیں پتا؟ جی مبشرہ یا پتا چل رہا بچے بائبل پڑھتے ہیں یا نہیں؟ مبشرہ افرایم کا پتا ہے؟ افرایم تو بائبل میں 1 سے زیادہ ہیں. یوسف 12 ہیں، مریم نام کی عورتیں 7 ہیں. یعقوب 5-6 یعقوب ہیں. تو کوئی ایک ہی بتا دیں. ہاں جی نہیں پتا؟ کیوں میزو؟ افرایم کا پتا ہے؟ افرایم کون تھا؟ ارے اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ افرایم کون ہے تو جو خدا کے اور اس کے بیچ میں بحث ہو رہی ہے اس کا کیسے پتا چلے گا آپ کو؟ کیونکہ
کہ خدا نبی کے وسیلہ سے افرایم کے ساتھ بحث کر رہا ہے, اس کو گلے پہنچا رہا ہے نبی کے ذریعہ سے. اور نبی کا نام کیا ہے؟ ہوسیہ. ہوسیہ خدا کے گلے شکوے افرایم تک پہنچا رہا ہے کہ بھائی میرے افرایم بھائی جی, خدا کو آپ سے یہ شکایات, یہ گلے ہیں. تو اگر آپ کو افرایم کا ہی نہیں پتا تو آپ کو ان گلوں کا بھی یقیناً پتا نہیں ہوگا. سب سے مشہور افرایم کون ہے؟ وہ ایک ہی ہے. میرے پیچھے بولے, افرایم یوسف کا بیٹا ہے, یوسف کا بیٹا ہے, اور یعقوب کا اور یعقوب کا پوتا ہے, پوتا ہے, اور اسحاق کا اور اسحاق کا پڑپوتا ہے. پڑپوتا ہے. ارے خدا کو دادوں, پردادوں, پوتوں, بیٹوں سے گلے شکوے ہو سکتے ہیں اور پتہ ہونا چاہیے. یشوع آپ کو پتا تھا افرایم کون ہے؟ آپ بائبل کے اسٹوڈنٹ ہیں, مگر یہ کہ بائبل ابھی فرسٹ ایئر ہے نا, اس کا فرسٹ ایئر ہے, اور پتہ ہونا چاہیے کہ افرایم کون ہے؟ یوسف کا بیٹا ہے. اور افرایم کے نام کا مطلب کیا ہے؟ جی ارشد صاحب, اس نے کہا جب افرایم پیدا ہوا تو اس نے اس کا نام افرایم اس لیے رکھا کہ خدا نے مجھے مصیبت کے ملک میں پھلدار کیا. پھلدار کیا, یہ افرایم کا مطلب ہے. اور افرایم کا نام اس لیے افرایم رکھا گیا ہے, خدا نے مجھے پھلدار کیا. اور وہ کہاں؟ مصیبت کے ملک میں. یہ افرایم کے نام کا معنی ہے کہ خدا نے مجھے مشکلوں میں, مصیبتوں میں کیا کیا؟ پھلدار کیا. اور یوسف نے جب اس کا یہ نام رکھا تو ایک گواہی کے طور پر رکھا. ایک شخص تھا, ہمیں خود سے اپنا نام بدلنا نہیں چاہیے جب تک خدا نہ بدلے. کسی نے اپنے نام کے ساتھ تھوڑی سی بلیسنگ اس کو ملی, کوئی لاکھوں میں چلا گیا. میں اس کا ریئل نام نہیں لوں گا تاکہ یہ راز رہے کہ وہ کون سا شخص ہے. اس نے اپنے نام کے ساتھ یوسف لگا لیا اور اس نے چینج کر لیا اپنا نام. نام تو وہی رکھا مگر اس کے نام کے ساتھ اضافہ کر لیا کہ میں اب اپنے نام کے ساتھ یوسف اس لیے لگاؤں گا کہ خدا نے مجھے یوسف کی طرح برکت دی ہے. یوسف کی طرح برکت دی ہے. ارے یوسف کی برکت کو پہلے پڑھ تو لیں. یوسف کی طرح, یوسف کی مانند. ارے یوسف تو پوری دنیا میں ایک جانی پہچانی شخصیت, اور جب وہ بادشاہ بنا, جب وہ وائس کنگ بنا تو پوری دنیا میں اس کی شہرت ہوئی. یوسف کی مالی طور پر جو بلیسنگ تھی, ارے اس کے ساتھ کوئی میچ تو کرے. تو لہذا بعد میں وہ مشکلات میں چلا گیا, مالی طور پر وہ پرابلم میں چلا گیا, اور وہ نام پھر ساتھ جڑا رہا, پر وہ جلال ساتھ جڑا. اور جلال پہلے بھی یوسف جیسا نہیں تھا. جب بھی آپ کسی اپنی خوبی کی وجہ سے نام چینج کریں تو پہلے سوچ سمجھ لیں کہ بعد میں یہ نام چینج کرنے کی وجہ سے کوئی شرمندگی اٹھانی. تو جو ماں باپ نے نام رکھا ہے یا آپ کا نام رکھا ہے, اسی نام کو بابرکت بنانے کی کوشش کریں. کوئی نیا برکت والا نام ساتھ جوڑنے کی کوشش. ہاں, اگر خدا آپ کا نام بدلے تو پھر بدلیں. اگر خدا نہیں بدلتا تو اپنا نام مت بدلیں. کیونکہ یوسف جو ہے وہ مصیبت کے ملک میں پھلدار ہوا, اور بڑے کرائسس میں سے گزرنے کے بعد, اور بعد میں یہ بھی پتا چلا کہ اس بندے کی ڈگری جعلی نکلی. ڈگری بھی جعلی نکلی, اور اس کو اس نوکری سے ہاتھ دھونے
पढ़े है, मगर नाम नहीं चेंज करना जब तक खुदा हमारा नाम बदले ना, के बाद में डिग्रियां क्या निकले, जाली निकले, और अपने नाम के साथ आप क्या लगा लें, यूसुफ। अरे यूसुफ के लिए तालियां बजाएं, उसकी कोई डिग्री जाली नहीं निकली, कोई डिग्री जाली नहीं निकली, उसकी हर एक डिग्री जेन्युइन थी। इसलिए वो लिख सकता है, वो कह सकता है, खुदा ने मुझे मुसीबत के मुल्क में, गुलामी के मुल्क में फलदार किया, मैं अपने बेटे का नाम ही अपनी जिंदगी के एक तजर्बे पर रखता हूं। तालियां, हालेलुया। तो लिहाजा एवी थोड़ी सी कोई खूबी अपनी देखकर यूसुफ की तरह छलांग नहीं लगानी कि बाद में डिग्री जाली निकले और टांग नौकरी टूट जाए। आइए आगे बढ़ते हैं। यूसुफ गुलामी और जेल और गैर मुल्क में क्या हुआ, फलदार हुआ। और इफ्राइम से गिला कब कर रहा है, जरा पढ़ दीजिए जरा। इफ्राइम दूसरों से मिलजुल गया। अरे इफ्राइम दूसरों से मिलजुल गया। अरे गैर जरूरी मेल जोल रखोगे तो खुदा का यह गिला है, यह पहला गिला है खुदा का। इफ्राइम से गैर जरूरी ताल्लुकात, गैर जरूरी मेल जोल, एवी कभी उसके साथ मिल, कभी उसके साथ मिल, कभी उसके साथ मिल, अपनी जिंदगी के मुस्तकबिल की डेवलपमेंट के दिन, महीने, सेकंड, घंटे जाया करते रहना और अपने फ्यूचर को दागदार करते रहना या अपने फ्यूचर की बुनियादों को कमजोर करना। इफ्राइम से खुदा को गिला है कि ये दूसरों से मिलजुल गया, यानी ये रिफाकतें इफ्राइम की खुदा को। अरे बाप को देखो, ये कहां मिलजुल रहा है, मुल्क केनान में। इफ्राइम कहां से कहां गैर जरूरी मुलाकातें कर रहा है, मुल्क केनान। अरे यूसुफ का बेटा मुल्क केनान में, जहां दूध और शहद की नदियां बहती थी, वहां गैर जरूरी रिफाकतें, गैर जरूरी मेल जोल रख रहा है। और बाप गुलामी के मुल्क में किसी को नहीं मिलता, वो अपने टारगेट पे काम करता है। तालियां बजाएं यूसुफ के लिए, क्योंकि उसे पता था मैं गैर मुल्क में रहता हूं, मैंने एरा वगैरह नथु खैरा से नहीं मिलना, मैंने टारगेट पे काम करना है, मैंने अपनी मंजिल पर जाना है, मैंने अपनी विजन को पूरा करना है। मैं मिस्र में हूं, मैं जेल में हूं, मैं गुलामी में हूं, मैं बर्दा फरोशों के हाथ बिक कर आया हूं, मुझे दूसरों से मिलना जुलना नहीं। हाय 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 हाय। इफ्राइम दूध और शहद की नदियों में गैर जरूरी मुलाकातें कर रहा है। खुशहाली है, कोई मुसीबत नहीं इफ्राइम के लिए। यूसुफ के लिए गुलामी है, जेल है, मुशक्कत है, पसीने हैं, दुश्मनियां हैं, हसद है। और उन हसदों, उन दुश्मनियों, उन गुलामियों के अंदर से आए तनावर दरख्त की तरह उग कर मिस्र के अंदर एक फलदार दरख्त बन गया। जोरदार तालियां यूसुफ के लिए। और इफ्राइम मुल्क केनान में मिस्र से आजाद होकर मुल्क केनान में आ गया है। और होशिया आज भी खुदा के गिले पहुंचा रहा है कि तू एदे नाल भी मिल रहे हैं, तू एदे नाल, ए ते किसे काम दा ही नहीं बंदा, ए ते किसे काम दा ही नहीं। तू इससे भी इफ्राइम गैरों से क्या पढ़ा जी, मिलजुल गया। किससे मिल गया, गैरों से। गैरों से। अरे वो गैर है जो आपकी जड़ें काटे, वो गैर है जो आप पर कीचड़ उछाले, वो गैर है जो आपकी तरक्की के रास्तों पर पत्थर रखे, वो गैर है जो आपको अंदर ही अंदर कमजोर करने की कोशिश करे, वो गैर है। और इफ्राइम ऐसे तजर्बात का शिकार हुआ है और उसे पता ही नहीं। और खुदा होशिया नबी को कहता है, जा जरा एदे कान च जाके चीखा मार मेरे तरफों, मेरे गिले की चीख मार, जाकर नबूवत कर, कलाम कर, नसीहत कर, तरबियत कर। इफ्राइम क्या कर रहा है, तू गैरों से मेल जोल रखा है।
میل جول رکھ رہا ہے. تیرا کی کام ہے؟ بچے پال، اپنے گھر کو سنبھال، اپنی نوکری کو سنبھال، اپنی شخصیت کو سنبھال، اپنے کریکٹر کو سنبھال، اپنے نام کو سنبھال، اپنے کام کو سنبھال، اپنے سارے ذات سے جڑے ہوئے جو لیگل ببلیکلی خاندانی طور پر پروجیکٹس جڑے ہوئے ہیں ان کو سنبھال. مگر خدا افرایم سے گلا کرتا ہے. آج بھی بیٹے بیٹیاں سنتے ہی نہیں. ماں باپ کہتے ہوئے دن اس کے ساتھ نہیں جانا، پھر اسی کے ساتھ جاتے ہیں. اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا، پھر اسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں. یہ نہیں کرنا، پھر وہی کرتے ہیں. ارے افراہیم ملک کنان دودھ اور شہد کی ندیوں میں پھل دار نہ ہوا، اور اس کا باپ یوسف مصیبت کے ملک میں کہتا ہے اس کو تو اپنے نام سے ہی سدھر جانا چاہیے تھا. انہوں پتہ ہی نہیں کہ میرے پیو نے میرا نام رکھیا کیوں سی. ارے افراہیم کو پتہ ہی نہیں. اب میں نے الما کا نام رکھا ہے، پتہ ہے نا کیا مطلب ہے الما کا؟ عربی میں بھی ایک نام الما آیا ہے، اس کا مطلب اور ہے، اور ایک انگلش میں بھی نام الما آیا ہے، اس کا مطلب اور ہے. مگر میں نے اس کا گوگل سے انگلش نیم رکھا تھا الما، جس کا مطلب ہے نورش ٹو پیپل، خوراک اور پانی سے دوسروں کو پالنے والی. اے نا اے بچے پڑھو، اپنی کمائی سے خود بھی خوب کھانا ہے اور دوسروں کو بھی کھلانا ہے. تالیہ. اپنی کمائی سے خود بھی کھانا ہے اور دوسروں کو بھی دینا ہے، دوسروں کو بھی پالنا ہے. ارے تجھے پتہ ہی نہیں تیرے باپ نے تیرا نام رکھا کیوں تھا؟ افراہیم، جس کا مطلب ہے مصیبت کے ملک میں، غلامی کے ملک میں، مشکلات کے اندر مجھے پھلدار کیا گیا. یہ افراہیم، اس لیے اس کا نام رکھا گیا. یہ نہ ہو کہ میں الما سے جب بھی پیسے مانگوں یہ تو پرس کے جی اے ویکھو جی خالی دا خالی جے، بلکہ اپنا کھولو او دے چو کڈو تو مینوں دو، اور نام تیرا میں نے رکھا ہے الما، جس کا مطلب ہے خوراک اور پانی سے دوسروں کو پالنے والی ہے. لہذا افراہیم کو جو باپ نے نام شوبل کا نام میرا حمید صاحب نے رکھا، کیا مطلب ہے اس کا؟ پاتھ، راستہ. راستہ. راستے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، یہ منزلوں تک پہنچاتے ہیں. ہالیلویا. راستوں کا کیا کام ہے؟ اپنے گھر تک پہنچانا، منزل تک پہنچانا، اس جگہ تک پہنچانا جہاں ہماری منزل ہے. تو بیٹے راستے پر رہنا ہے، بلکہ آپ کو دوسروں کے لیے راستہ بننا چاہیے. یسوع نے کہا تھا راہ، حق اور زندگی. ارے میں پاتھ ہوں، میں راستہ ہوں. ارے کوئی بڑی شاہراہ نہیں بن سکتے نجات کی، کوئی نجات کی پگڈنڈی بن جائے. تالیہ. کوئی نجات کی پگڈنڈی بن جائے. پگڈنڈی پتہ کیا ہوتا ہے؟ میں پنڈا سے جدو گیا، اپنے گاؤں میں گیا تو کھیتوں کے درمیان ایک چھوٹا جا پیا ہوتا ہے نا، پاؤں دھر نکلی چھوٹی جا رستہ ہوتا ہے، وہ دے اتے ٹور کے تے جائیدہ ہے. ارے کوئی نجات کی بڑی شاہراہ راستہ نہیں بن سکتے، کوئی نجات کی پگڈنڈی بن جائے. مگر اس نے اپنے نام کی کوئی لاج نہیں رکھی. باپ مصیبت کے ملک میں پھلدار ہو گیا ہے. یہ ملک کنان میں جہاں دودھ اور شہد کی ندیاں ہیں، خدا کا پیارا نبی ہوسیا اس سے گلہ کرنے آتا ہے. اے افراہیم، خدا کو تجھ سے گلہ ہے کہ تو غیروں سے مل جل گیا. کیوں جی نوئل؟ کس سے ملنا ہے؟ جس سے فیوچر بیٹھ کے خراب نہ ہو. کیوں الما؟ کس سے ملنا ہے، کس سے بیٹھنا ہے جس سے مل کر فیوچر خراب
नाउ क्यों जी मुबशरा, किससे मिलना है? वो कहता नहीं इफ्राहिम गैरों से, एवी लल्लू पंजू एरा वगैरह नथु खैरा से, आओ बवो जी बवो। और कभी कभी नथु खैरा कहता भी है मेरी अम्मा बुला रही है, ते जिसका फ्यूचर इतना किंतु कहा भैं अम्मा बुला रही है, खैर है अम्मा ते बुलाती रहती है, अब्बा ते बुलाता ही रहता है तो वो दसिया ना मैं एक सिक्योरिटी गार्ड की गल है, नहीं ऐसे नहीं नहीं मिलना। आगे पढ़े जी, अगला गिला क्या है उसको? इफ्राहिम एक चपाती है। जरा गौर से सुने, इफ्राहिम एक चपाती है। चपाती का मतलब है रोटी। यशवा क्या मतलब है? इफ्राहिम, यशवा लिख रहा है इफ्राहिम एक क्या है? चपाती है। और देखो खुदा इफ्राहिम चपाती रोटी से क्या गिला कर रहा है, जरा सुनो जी चपाती का हाल वेखो जरा। जो उल्टाई ना गई। हेलो, जो उल्टाई नहीं गई। हुण रोटी नदीम प्यारा साहब, पेड़ा सोहना जिहा, पेड़ा तो बड़ा अच्छा बना। पेड़ा किदा सी है? यूसुफ दा। तालिया यूसुफ के लिए। पेड़ा बड़ा सोहना सी, अगो पेड़ा ही बिगड़ गया है। कहता है इफ्राहिम एक रोटी है। आइजक साहब, आइजक एक रोटी है जो उल्टाई गई है ना, ये ना काफी साल एक ही पासे पे रहो ते रोटी सड़ जाए, रोटी सड़ जाए। अरे सारी माओ को, सारे बापों को कहूंगा अपनी औलाद थुलो। फरियाद साहब, अपनी औलाद थुलो, इनू सेको जिन्हें तवे से रोटी नहीं बनाई दी। क्यों बहन मरीन? ये ना मुंडा एक पासे पा के सवाई दवो तो उन्होंने थुलो ही ना, वो उथे ही वो खून रुक जाए बाजू का, तो बाद चुका अबू जी मेरी बांस हो गई है। मैं की करा, मैं आप ही सुती हुई सा, मैं आप ही सुता है सा। जब अब्बा ही नहीं उल्टाया गया तो पुत्रा ने किनू उल्टाना? अरे आप, अरे देखो तशबीह बड़ी अच्छी दे रहा है खुदा। यूसुफ के बेटे इफ्राहिम को तशबीह किससे दे रहा है? अच्छा, यहाँ इफ्राहिम से गिला नहीं हो रहा है। एक और चीज़ मैं बता दूं तफसीरी एतबार से, यहाँ इफ्राहिम के पूरे कबीले को कहा जा रहा है। इफ्राहिम के पूरे कबीले को कहा रहा है कि इफ्राहिम के पूरे कबीले, तू एक रोटी की मानिद है जो उल्टाई, तू अपने आप ਨੂੰ थुलिया ही नहीं। थले अग बलदी रही है, एक पासे रोटी पई रही है, तो मदिया को पूछो जो एक पासे रोटी सिर्फ पकती है। रोटी दोनों पासे पकानी पैंदी खाने वास्ते या एक ही पासे? दोनों साइडों से। खराब आटा भी पका के रोटियां डंगरां नूं पाइए ना, तो वह भी थुलनी, भावें एडे एडे मोटे ढोडे क्यों ना होण। ते तुहाडी ते औलाद ते तुसी है। ये हमीद साहब आजकल मजहब पर आते हैं, राफे आती है, मतलब वे लग रहे हैं कि तवे पे सही पक के आए हैं ते जेड़े सड़ के आन वो भी पता चल जाता। अरे रोटी को पकाना पड़ता है, ऊपर नीचे उसको करो है। ये जो औलाद के साथ सख्ती की जाती है ना, ये ना कि असी तुहानू सेकन डे हाँ, तो तुहानू जे पौने ना सेकीए तो सेके जाओ, नहीं तो फिर मौके ना तुहानू सेकना पैना है चंडा ना। ओ इधर इधर आओ यार, मैं तुम्हें यहाँ बैठा रहा हूँ, इधर बैठो, ये करो वो करो। जब माँ बाप ऐसे करें नोएल, तो हम क्या कर रहे हैं? आपकी साइडों को चेंज कर रहे हैं, पका रहे हैं। ते माए भी अपने आप को पकाए। जब माए ने एक पासे पड़ी रहना पड़ी रहना पड़ी रहना पड़ी रहना, फिर वो दूजे पासे आएगी, फिर पई रहेगी, फिर पई रहेगी, फिर समझो माँ सड़ गई है। उस रोटी की माँ ने जो उल्टाई, मतलब कि हिलो जुलो ना,
हिलो जुलो। अरे वो कह रहे हैं कि इफ्राइम एक चपाती है जो उल्टाई नहीं गई, ये एक ही तरफ पड़ा रहा है और एक तरफों पके हैं और पकने के बाद जल गए हैं, और दूसरी तरफ वो थल्लों दूजे पासे ਦਾ ਸੇਕ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਕਾਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਸਕਿਨ, ਉਹ ਵੀ ਕੱਚੀ, वो भी कच्चे। इस तरह की रोटी किसी काम की होती है? मझ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਮੱਝ ਵੀ ਏਡੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖੇਗੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਹੈ। अरे नहीं, खुदा का इफ्राइम से गिला है। वो कह रहा है कि नहीं, ये इफ्राइम जो है ना, ये एक तो गैरों से गैर ज़रूरी मिलता जुलता है और फ्यूचर पे फोकस ही नहीं होता, अपने आप को सही करने के लिए तैयार ही नहीं होता। और आगे पढ़ें जी, आगे क्या कहता है खुदा? अजनबी उसकी तवानाई को निगल गए, अजनबी उसकी तवानाई को निगल गए। इसका क्या मतलब है? सबसे बड़ा जो अजनबी है ना, उसका नाम बताऊं जो आपकी तवानाई निगल जाएगा? मोबाइल। सबसे बड़ा अजनबी कौन है? मोबाइल। ऊंची बोलो। हाँ जी नोएल, सबसे बड़ा अजनबी कौन है जो आपकी तवानाई निगल जाएगा? मोबाइल। क्यों जी अलमा? जो लोग मोबाइल के साथ लगे रहते हैं वो अजनबी है, और वो आपके वक्त की ताकत, आपकी तवानाई, आपकी ब्लेसिंग वाला जो वक्त है वो निगल रहा है, वो खा रहा है, वो चबा रहा है आपके वक्त को, आपकी तवानाई को, आपकी स्किल्स को, आपकी जो खूबियां हैं वो उसको सबको निगल जाएगा। और इस अजनबी से किनारा करो। इस अजनबी को एक साइड पर रखें और बाइबल पकड़ें, किताबें पकड़ें, ड्यूटी पे जाएं, काम करें, घर के काम करें, घर की डस्टिंग करें, है? घर की सफाई करें, है? ये अजनबी कौन है? मोबाइल। तो कई तो बच्चे रोना शुरू कर देते हैं। अगर वो रोएं तो उनको 2-3 लगा के और रुलाएं, और उनको रुलाएं। नोएल की वैसे मुझे एक बात अच्छी लगती है, ये मोबाइल के साथ इतना, ये खेलने का बड़ा शौकीन है, खेलने का बड़ा शौकीन है। ये अपने कज़नों को भी कहते हो, यार ये क्या, निकलो तुम टीवी के आगे बैठे रहते हो, आओ खेलें, एक दूसरे को लिए एक दूसरे से एंजॉय करें, कोई छत पे जाके खेलें, कोई ताश खेलें, कोई लूडो खेलें, कोई पकड़न पकड़ाई खेलें, कोई इस तरह की वो गेमें खेलता है। अच्छी बात है नोएल। मोबाइल एक ये बड़ा जालिम अजनबी है। और आप कहते हैं अजनबी, मोबाइल तो मेरा चाचा है, मेरी फुप्पू है, मेरा दोस्त है, मेरा फ्रेंड है। और क्यों जी फ्रेंड है आपका मोबाइल है? कभी कभी कहते हैं अब्बा होए या ना होए मोबाइल होए, अम्मा हो या ना हो मोबाइल हो, रोटी हो या ना हो मोबाइल हो। वो बाप कहता है यार आटा खत्म हो गया, आटा लेके आना, पहले मोबाइल का चार्जर ले आओ ना, खराब हो गया। मेरा अजनबी डेड हो गया, मेरे अजनबी की बैटरी डेड हो गई है, आटा अम्मी जी आज हांडी रहने दो ते चार्जर ले आओ। तो कई बीवियां भी रफड़ पा देंदियां जे। मैंने कई बीवियों को देखा है, वो अपने शोहरों को कहती है मोबाइल मेरा सही रहना चाहिए, अदरवाइज जो कुछ मर्जी होए, मोबाइल नहीं तो फिर कुछ भी नहीं, बचा नहीं, बची नहीं, अब्बा नहीं, अम्मा नहीं, फुफो नहीं, चाची नहीं, ताई नहीं, नौकरी नहीं, सफाई नहीं, धुलाई नहीं। और कई थे मशीन के चक्कर चला के फिर मोबाइल पकड़ लेंगे, फिर जिन्ना तक चक्कर नहीं लगता कोई 10 मिनट मोबाइल फिर पकड़ लेते हैं।
تو کیا کہتا ہے افرایم کی توانائی کون نکل گیا؟ अजनबी निकल गए। अजनबी निकल गए। तो अजनबी लोग भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं आपका टाइम ज़ाया करने वाले, और टाइम ज़ाया करने वाले रिश्तेदारों से खबरदार रहें, दूर रहें। ਐਵੇਂ नहीं जाके रिश्तेदारों को घंटों घंटे बह जाओ तो दुआ च ਤੁਹਾਨੂੰ मौत ਪੈਂਦੀ है। 15 मिनट ਤੁਸੀਂ दुआ करो, नाल ही ਤੁਹਾਨੂੰ नींदर आ जाएगी है। क्यों जी? रास्ता, आप रास्ता हो ना, हाँ? क्यों जी? नोरिश टू पीपल है। वो कहते नहीं, हमसे नहीं होते, और बाइबल पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ के फारिग हो जाते हैं। लिहाजा ये इफ्राइम से खुदा को गिले हैं। आगे पढ़ दीजिए जरा। और उसको खबर नहीं, बाल सफेद होने लगे। बाल सफेद होने लगे। यहां खुदा गिला कर रहा है कि वाल थोड़े चिट्टे हो गए ने भैन मेरिए, भरा मेरिया, ओ मेरिए बंदिए, मेरे बंदिया, वाल तेरे सफेद हो गए ने, बल्कि आधे हैं तो आधे नहीं है। तेरे वाल उड़ गए ने और तुझे अभी तक कोई खबर ही नहीं, तुझे पता ही नहीं। लिहाजा इफ्राइम से खुदा गिले कर रहा है। इफ्राइम से खुदा गिले कर रहा है। वो कह रहा है मुझे इफ्राइम से गिला है, मुझे शिकवा है। अरे अपने जेन्युइन कामों, ये इफ्राइम बेफल रहा तो रहा क्यों? इन्हीं वजह से बाप देखो किस जगह पर फलदार हो गया है। ये मुल्क कनान में फलदार नहीं हुआ, इसको मुल्क कनान में बरकत नसीब नहीं हो रही इफ्राइम को, यूसुफ के बेटे को। और इसको तो अपने बाप की गवाही से ही बड़ा शानदार अपने आप को बनाना चाहिए था इस कबीले को। और ये कबीला बहुत ज़्यादा नलायक हो रहा है। नबी कह रहा है कि ये सारा ख़ानदान ही नलायक है। इफ्राइम का सारा ख़ानदान, सारा कबीला नलायक है और खुदा उनसे गिले कर रहा है। और आगे पढ़ दीजिए ज़रा। बाल सफ़ेद होने लगे पर वो बेखबर है। बेखबर है। बाल सफ़ेद होने लगे, वो बूढ़ा हो रहा है, पर अभी भी बंदे का पुत्र नहीं बना। वो बूढ़ा हो गया इफ्राइम। अरे ए कबीले, तुझे कबीला बने हुए कितने साल हो गए हैं, और अपने तर्ज जिंदगी तो देख। मैं सारी दुनिया में जो तरक्की से हैरान हुआ हूँ, वो चाइना की तरक्की से बड़ा हैरान हुआ। और चाइना ने, और ये इफ्राइम का कबीला बने हुए इतना अरसा हो गया है, और उनकी तरक्की देखें। बाल सफ़ेद हो गए, फलदार नहीं हुए, उन्हें पता ही नहीं कि क्या करना है, और ज़िंदगी में फिर ऐसे ही गरीब पैदा हुए और गरीब ही मर गए जाएंगे। पहले बाप दादा गरीब मर गए, और उसके बाद औलाद पैदा हुई, और वो भी गरीब पैदा हुए, और वो भी मर गए। अरे अगर परदादा गरीब मरा है तो दादे को तो गरीब नहीं मरना चाहिए। चलो अगर दादा भी गरीब मर गया है तो बेटे को तो गरीब नहीं मरना चाहिए। और आगे पोते का देखें क्या हाल होता है। इफ्राइम से गिला है। इफ्राइम, तुझे कबीला बने हुए इतना अरसा हो गया है, तेरे बाल सफेद हो गए, तू एक मैच्योर, तेरी तख्लीक का वक्त, साल कितने गुजर गए, कितने गुजर गए, सदियां गुजर गई इफ्राइम, मगर तू वहां का वहां ही, कोई तरक्की नहीं की, कोई बेहतरी नहीं, कोई रूहानी तौर पर, कोई जिस्मानी तौर पर। तू खुदा के साथ तो जीरो है, खुदा के साथ तो तू क्या है, जीरो है। और आगे पढ़ दीजिए, आगे क्या कहता है। वो खुदा को गिले शिकवे कर रहा है इफ्राइम से, यूसुफ के बेटे से और यकूब के पोते से। आगे पढ़ दीजिए। और फख्र इस्राइल उसके मुंह पर गवाही देता है। और फख्र इस्राइल यानी खुदा, फख्र इस्राइल गवाही देता है। क्या है, बंदा नहीं, ये सही है, ये आगे बढ़ना ही नहीं चाहता, ये आगे बढ़ना ही नहीं चाहती, ये नहीं आगे बढ़ना चाहता, इसको
नसीहत तरबियत करते हैं, फिर वही उसी जगह पर, फिर नसीहत तरबियत करते हैं, फिर उसी जगह पर। और खुदा इफ्राइम के गिले शिकवों में एक शिकवा ये भी, एक बात ये भी करता है कि मैं गवाही देता हूं कि वाकई जिसके बारे में खुदा गवाही दे तो वाकई फिर ये बात सच्ची है कि ये बंदा ही ठीक नहीं, ये ख़ानदान ही ठीक नहीं है, ये तरक्की करना ही नहीं चाहते, ये राह रास्त पर आना ही नहीं चाहते, और फ़ख्र इस्राइल गवाही देता है। तो खुदा इफ्राइम से गिले शिकवे करता है। और आगे पढ़ दीजिए जी, आगे क्या करता है? तो भी वो खुदावंद अपने खुदा की तरफ रुजू नहीं लाए, वो रुजू नहीं लाए। खुदा ने गवाही भी दी पर वो कहते नहीं, खुदा झूठा है, हम सच्चे हैं, खुदा गलत कह रहा है। और अगर खुदा सच कह भी रहा है तो मैं नहीं मननी। अगर खुदा सच कह भी रहा है, गवाही भी दे रहा है, मैं नहीं मानूंगा। आगे पढ़ दीजिए जरा। इफ्राइम बेवकूफ, हेलो, इफ्राइम बेवकूफ व बेदानिश फाख्ता है, एक बेवकूफ परिंदा। ये कबीला क्या है? बेवकूफ। ये खानदान क्या है? बेवकूफ, बेवकूफ खानदान है, बेदानिश फाख्ता की मानिंद है। बेदानिश फाख्ता की मानिद है। ये उस फाख्ता की मानिद है जिसकी अकल नहीं होती, जिसके अंदर बेवकूफ फाख्ता। लिहाजा खुदा इफ्राइम, और अगर आप गौर करें तो यूसुफ एक उकाब की मानिद परिंदा, कहेंगे कि वो उकाबों की तरह ऊंचा बुलंद उड़ने वाला बाप, और इफ्राइम का, इब्राहिम की ये कहाँ है? और वो भी थर्स्टी, प्यासा, जिसको कोई कंकर नहीं मिल रहा तो घड़े में डालकर पानी ऊंचा करके पी ले, हैं? बेवकूफ है ना। बाप उकाब है और बेटा बेवकूफ। कहां नाल कहां का जो फाख्तों ने, नबी ने फाख्ता का ऐसी काम ही कह सकने। अरे बड़े खानदान मैंने देखे हैं, उकाबों की तरह उड़ना नहीं चाहते, उनकी उड़ान के वैसे पर खुदा देना चाहता है, पर वो पर कौन से लेना चाहते हैं? कां की तरह, कौवे की तरह। बस वो इधर से काएं काएं करता उड़ेगा, कभी किसी की छत पे बैठ जाएगा, देखेगा कोई रोटी ना सटी है। कौवा ऐसे ही करता ना। कभी उकाब भी देखा है आपके घरों के दीवारों पर आकर बैठा है? हाय हाय। कभी उकाब भी देखा है कि आपके घर की दीवारों पर आकर बैठा हो और वो रोटी के टुकड़ों को देख रहा हो? कोई तुसी दाल बर्तन की बची हुई छत के किनारे पे डाले और उकाब ने वहां खाई हो, या आपके चूसी हुई चिकन की बोटियां हड्डियां रखी हों और उकाब ने कभी उधर, कौन देखेंगे आप? हमेशा कौन बैठा होगा? सारे ऊंचे बोले कहां? कौन बैठेगा? कौवे। कहां बैठेगा? उकाब नहीं बैठेगा। ये जो कौवे होते हैं ना, ये दूसरों की चीजों पर ही नजर रखते हैं। उकाब लिखा है एक तो मुर्दार भी नहीं खाता, वो जिंदा शिकार इमरान साहब पकड़ता है और फिजाओं में उड़ता उड़ता ही पकड़ लेता है? और कौवा उड़ता उड़ता क्या पकड़ सकता है? उन्हें बह के किसे छत पे जाएगा, किसे रूढ़ी से बवेगा, रूढ़ी पे। कौवे मैंने रूढ़ी पे देखे हैं, उकाब मैंने रूढ़ी पर, गंदगी के ढेर पर नहीं देखे। अरे बाप तेरा गैर मुल्की फिजाओं में उड़ता है? यूसुफ गैर मुल्की फिजाओं में, गैर मुल्की अच्छी अच्छी जगहों में जाकर बैठता है। और इससे अच्छी जगह क्या होगी? फिरौन के साथ तख्त पर बैठा हुआ है, तालियां। इससे अच्छी जगह क्या होगी यूसुफ के लिए? मगर इफ्राइम को देखो, कौवे की तरह बेदानिश, कौवे की मानिद, बेदानिश फाख्ता की मानिद, बेदानिश परिंदे की मानिद
اڑ کے کبھی روڑی تھے کبھی کسی کے گھر. کسی کے گھر سے سالن لینا بری بات نہیں ہے مگر کئیوں کی عادت ہی بن جاتی ہے. آج کی بنایا جے ہیں وہ برتن بھی اسپیشل اپنا ہی لے کے جائیں گے کیونکہ جو ان پتہ نا کہ چلو ایک دے دا سالن لینا ہے اتوں پھر وہ برتن بھی چلو برتن والا وہ غصہ تو اسی ٹھنڈا کر دینے ہیں. لہٰذا کئی لوگ کچھ لوگ ہنس رہے ہیں. اگر آپ لیتے ہیں میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا آپ اپنا سالن بنائیں وہ زیادہ اچھی بات ہے. یہ نہیں کہ آپ کبھی کسی کے بنیرے پہ کہاں کریں تو مجھے سالن دے دیں ہے. نہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے نا کچھ لوگوں کا سالن کہا جائے تو سیدھا دیوار پہ مارتے دروازے پہ ہے میری بوٹی ایک کاٹے ہے. لہٰذا یہ اپنی آنکھیں بند کریں.